Hello students, class 8. Now we are going to start chapter number 3, synthetic fibers and plastic in science. You already know that fibers are of two types, synthetic fibers and natural fibers. So in previous classes you already studied about some of the natural fibers. Now we are going to continue with synthetic fibers. So what are synthetic fibers? The fibers that are man-made in industries are known as synthetic fibers. So how synthetic fibers are made? तो synthetic fibers किस तरह से बनाए जाते हैं? A chain of small units of fiber joined together make a synthetic fiber. In fact, each small unit or chemical substances. When many such small units are combined, a large single unit is formed, which is known as polymer. The word polymer originated from the Greek word poly means many and mers means part unit. तो किस प्रकार से सिंथेटिक फाइबर्स बनते हैं? हाउ द सिंथेटिक फाइबर्स आर डिराइव्ड? सो सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं अलग अलग प्रकार के वुड या कोल वगैरह से निकाल के उनको नेचुरल फाइबर्स के साथ मिक्स करके बनाए जाते हैं. तो जो एक सिंगल यूनिट होती है, अ सिंगल यूनिट ऑफ फाइबर इज नोन एज मोनोमर. और जब बहुत सारे मोनोमर मिल जाते हैं तो उसको कहा जाता है पॉलीमर. और पॉलीमर बनने की प्रक्रिया को कहा जाता है पॉलीमराइजेशन. मोनोमर और पॉलीमर को हम इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि किसी माला में मोती, बहुत सारे मोती मिलकर के एक माला को बनाते हैं. तो अगर एक सिंगल मोती को हम कंसिडर करें या एक बुक की एक सिंगल पेज को कंसिडर करें तो वो होता है मोनोमर. और जब बहुत सारे मोनोमर मिलते हैं या जैसे बहुत सारे मोती मिलकर के एक माला बना देते हैं, उसी तरह से बहुत सारे मोनोमर मिलकर के एक पॉलीमर बनता है और बहुत सारे पॉलीमर मिलकर के बनता है एक सिंथेटिक फाइबर. तो इस पॉलीमर के जुड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है पॉलीमराइजेशन. और सिंथेटिक फाइबर्स बनते हैं लकड़ी, कोयले यानी अलग अलग चीजों से निकाले हुए पॉलीमर्स को नेचुरल फाइबर्स के साथ मिला करके उससे सिंथेटिक फाइबर्स बनाए जाते हैं. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स यूज इन वर्ल्ड. सो सम ऑफ द नेचुरल सिंथेटिक फाइबर्स आर, वन ऑफ दीज इज रेयॉन. रेयॉन जो है इसको आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका रिजेम्बलेंस यानी देखने में सिमिलरली लुक लाइक सिल्क. But silk is very costly, but rayon is cheap. Next synthetic fiber is nylon. Nylon is a fully synthetic fiber which was made from coal, water and air. Nylon की क्वालिटी क्या क्या होती है? Strong, elastic and lightweight are some of the properties of nylon fiber. It was lustrous and easy to wash. These attributes make it popular for making clothes. Next natural fiber is polyester or acrylic. Another synthetic fiber is polyester. Fabric made of these fiber does not get crumpled easily and remains crisp for long. It is easy to wash, which makes it suitable for making dress material. Next is PET, polyethylene terephthalate. It is the most commonly used form polyester. It is used for making bottles, utensils, films, wires and many other plastic products. Next is acrylic. In winters we wear sweaters and use shawls for blankets. Many of these are not even made from natural wood. They though appear similar to that of wool. These are made from another type of synthetic fiber called acrylic. The wool provided by natural sources is very costly, whereas clothes made from acrylic are comparatively of low cost. सिंथेटिक फाइबर्स और नेचुरल फाइबर्स में फ़र्क क्या होता है कि सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो चीप होते हैं, सस्ते होते हैं, जबकि नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं वो कॉस्टली होते हैं क्योंकि वो डिपेंड करते हैं मौसम के ऊपर, किस प्रकार की फसल होगी. इस वजह से जो है नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं वो कॉस्टली होते हैं और सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं क्योंकि मैन मेड होते हैं, दे आर मेड इन इंडस्ट्रीज सो दे आर चीप. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर, ऑन अ रेनी डे अम्ब्रेला ऑफ विच फैब्रिक वुड यू यूज एंड व्हाई? Unique characteristics of synthetic fibers make them popular for dress materials. They are durable, dry up quickly, less expensive, readily available and easy to maintain.
What are the qualities of synthetic fibers? They are durable, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, बहुत लंबे समय तक चलते हैं. ड्राई अप क्विकली, यानी कि पानी से जब हम उसको धो करके सुखाते हैं तो जल्दी सूख जाते हैं. लेस एक्सपेंसिव, यानी कि सस्ते होते हैं. रेडिली अवेलेबल, आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं, कहीं भी बनाए जा सकते हैं. और इजी टू मेंटेन, इनको आयरन वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती. किसी भी तरह से हम रख दें तो उनको हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं. अब आता है प्लास्टिक्स. You already know about plastic. In our day-to-day life, we use most plastic items. Like synthetic fiber, plastic also type of polymer. Though the arrangement of unit is not similar in all the plastic, in some it is linear, whereas cross-linked in others. पॉलीमर जो होते हैं प्लास्टिक्स के, कई बार जो है वो सीधे सीधे होते हैं, लाइक शोन इन दिस पिक्चर, और कई बार जो होते हैं वो क्रॉस लिंक्ड होते हैं, एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़े होते हैं, जैसे फिगर नंबर 3.5 के ए और बी में शो किया गया है. प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड, रीयूज्ड, कलर्ड, मेल्टेड, रोल्ड इनटू शीट्स और ड्रॉन इनटू वायर्स व्हिच मेक इट यूजेबल इन डिफरेंट वेज. प्लास्टिक को जो है रिसाइकिल किया जा सकता है, उनको रीयूज किया जा सकता है, उनको कलर किया जा सकता है, उनको मेल्ट किया जा सकता है, उनके शीट्स बनाए जाते हैं, इवन उनसे वायर्स भी बनाए जा सकते हैं. The plastic which can be easily deformed on heating and can be bent are known as thermoplastics. Some example of thermoplastics are polythene and PVC. These are used for manufacturing toys, cones and various types of containers. कुछ ऐसे प्रकार के प्लास्टिक होते हैं जिनको कि आसानी से मोल्ड किया जा सकता है, उनको अलग अलग शेप्स में ढाला जा सकता है और वो आसानी से मुड़ सकते हैं. इनको कहा जाता है थर्मोप्लास्टिक्स. जस्ट द मोस्ट कॉमन थर्मोप्लास्टिक्स इज पॉलीथीन. नेक्स्ट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, जैसे बेकेलाइट एंड मेलामाइन. दीज आर प्लास्टिक विच वन गेन देयर शेप नॉट बी रीमोल्ड और रीचेंज, यानी कि एक बार उनको ढाल देने पर, एक बार सामान बनाने के बाद उनको फिर से गला करके दूसरी कोई चीज नहीं बनाई जा सकती. बेकेलाइट और मेलामाइन इनके दो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है. बेकेलाइट के इस्तेमाल स्विचेस वगैरह या उस बनाने के लिए किया जाता है. मेलामाइन के कप प्लेट्स वगैरह बनाई जाती हैं. प्लास्टिक्स के क्या क्या एक्टिविटी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव. प्लास्टिक डज नॉट रस्ट, यानी कि प्लास्टिक में जंग नहीं लगती. प्लास्टिक लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल. वेरी लाइट वेट. Plastics are very lightweight, they are strong and very durable or long lasting. Plastics are poor conductors, यानी कि we can use plastics for doing our some electrical work, और मतलब प्लास्टिक अगर हम कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे हैं तो हम उसमें बचने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसीलिए जो है जो भी तार वगैरह होते हैं जो उनके ऊपर प्लास्टिक चढ़ाई जाती है, बिकॉज प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. और बट प्लास्टिक्स एंड द एनवायरमेंट. प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. You have studied earlier in the previous classes about biodegradable and non-biodegradable materials. So plastics are non-biodegradable. They don't get mixed with environment or soil. They remain as they are for hundreds or thousands of years. Or by this way, they make our soil or our environment infertile. So we have to make the uses of plastics less and less. So students, please read this chapter carefully and remember the important points of this chapter. So stay healthy. Bye.